Today, this video is part 2 of question triggers video IELTS speaking. I've already uploaded part 1. In case if you haven't watched part 1 question triggers video for IELTS speaking, I would highly recommend you to watch question triggers video part 1. Now this is part 2, and in this part 2 we are going to talk about some of the other question triggers which are vitally important, and if you understand them very carefully, I am sure that in IELTS speaking you can easily score 7+ band score. And you can also get the free PDF of today's video. Just let me know in the comment section below if you want free PDF of this video. At the end of the video, I'll share the free PDF with you. So let's begin today's video, part 2, question triggers for IELTS speaking. So now we have trigger number 5, and trigger number 5 we have, do you think noun is important? When you have this question type, so then you have to mention your opinion, you need to compare and you need to evaluate your answer. So इसमें sports के बारे में हो सकता है, education के बारे में हो सकता है, it could be about technology, it could be about anything. So let's understand, अगर ये question trigger आपसे पूछा जाए, then how to tackle and how to answer that. Okay, so first let's see some example questions. किस तरीके के questions आते हैं? Do you think education is important, right, for personal development? Do you believe maintaining good health is important, and why? How important is it to protect the environment in your view? Do you think communication skills are important in today's world? How important is it for people to learn about history? Do you think achieving a work-life balance is important? Now let's see structure for this trigger. अगर ये trigger आपसे पूछा जाए, अगर ये type आपसे पूछी जाए, then how you can answer, what's the structure that you can use? First, you need to give an opinion. और वो आप शुरू कर सकते हैं without a doubt. From my point of view, for me, मैं practical question भी लूंगा जिसका आंसर हम लोग करेंगे. I'll show you that how to tackle question type. इस question type को कैसे tackle करना और किस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं. उसके बाद आपको reason mention करना है. You can begin with one of the phrases like one of the main ones is. इसका मतलब ये है कि यहाँ एक कारण ये भी है. The major reason is, आप ये भी यूज कर सकते हैं. ये मेरा फेवरेट है. The only explanation came to mind is. That means कि सिर्फ एक ही explanation मेरे दिमाग में आई है जो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा. बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बैंड स्कोर 7+ बैंड स्कोर आया है. अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर आज तक मुझसे किसी ने भी कोचिंग ली है या मेरे कोर्स को ज्वाइन किया जो मेरा प्रीमियम आइल्स मास्टरी कोर्स है, तो 7+ स्कोर 90+ स्टूडेंट्स का मेरा स्कोर आया है. अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अरुण आइल्स क्लासेस, and you can join my premium IELTS mastery course for band 9. Example, उसके बाद आपको example mention करनी है. How you can start? Let's say कि चलिए बात करते हैं इस चीज की. For example, for instance, let's see a question. Do you think education is important for personal development? Why or why not? First, opinion. In my opinion, education is extremely important. आप यहां पर इस तरीके से जब extremely जब आप यूज करते हैं, आपको बताना चाहूंगा यहां पर important बहुत बेसिक वर्ड है. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि important की जगह पर crucial, significant, right, इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं. किसी दिन बहुत डिटेल में एक वोकैबुलरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर उसके जैसा वोकैबुलरी का वीडियो, कैसी वोकैबुलरी आइल्स के लिए यूज करनी चाहिए, मेरे हिसाब से 1 या 2 वीडियोस होंगे पूरे यूट्यूब पर. आपको वैसी वीडियो नहीं मिलेगी कि किस तरीके की वोकैबुलरी, कैसी वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए. ये बताने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोस हैं बेसिक को एडवांस में कैसे यूज करना है. बट आपको वोकैबुलरी आइल्स के लिए कौन सी पर्टिकुलरली यूज करनी चाहिए जिससे बैंड स्कोर आपको मिलता है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा. If you want me to upload vocabulary video for particularly IELTS, please comment में मुझे जरूर बताएं. अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है, इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है. जैसे एक्सट्रीमली इसके साथ ऐड हुआ, अगर इंपॉर्टेंट की वैल्यू अपने आप में 100% है तो ये वर्ड ऐड होते ही इसकी वैल्यू 150% हो गई.
या डबल भी हम लोग बोल सकते हैं। ये मेरा फेवरेट है, वाइटली इंपॉर्टेंट, बहुत इंप्रेसिव है। ये आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, वाइटली इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी मेंशन रीजन। रीजन आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, दिस इज बिकॉज education not only provides knowledge but also helps individuals develop critical thinking, problem solving skills, and the ability to make informed decisions. Now we give an example. For example, somebody who studies science or mathematics learns how to analyze data and solve complex problems, which can be applied in both their personal and professional lives. Additionally, education exposes people to diverse perspectives, helping them become more open-minded and empathetic. So जो आपको चीज ध्यान में रखनी है, first opinion, then your reason, and then example, right? जो मैंने बताया थे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स, वो क्वेश्चन लेकर आप आंसर भी कर सकते हैं। कमेंट में मुझे किसी एक क्वेश्चन का आंसर करके जरूर बताएं, सो दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपको मैं समझा रहा हूं, आई नीड टू नो दिस कि वो आपको समझ आ रहा है, राइट? नेक्स्ट, ट्रिगर नंबर 6 वी हैव, व्हिच नाउन्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री। अगेन यहां पर भी आपको ओपिनियन मेंशन करना है, यू नीड टू कंपेयर एंड यू नीड टू इवैल्यूएट। स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो सकता है, फूड के बारे में हो सकता है कि कौन सी ऐसी चीजें जो पॉपुलर है। ये ट्रिगर भी बहुत पूछा जाता है आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 में। ट्रस्ट मी, आईएलटीएस स्पीकिंग बहुत इजी कर रहा हूं। ये अक्सर मेरे पेड कोर्स में होता है, प्रीमियम कोर्स में, जो मेरा प्रीमियम आईएलटीएस मास्टरी कोर्स है, जो आज ये मैं यूट्यूब पर इसका जो मैंने सीरीज शुरू की है, ये पार्ट 2 है। इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं क्वेश्चन ट्रिगर के ऊपर वीडियो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, then definitely I'll make part 3 video for question triggers. All right, so let's say some example questions. किस तरीके के questions आते हैं जब हमसे पूछा जाए कि which nouns are popular in your country? Okay, which types of food are most popular in your country? What sports are popular in your country? Which festivals or celebrations are most popular in your country? What kind of music is popular in your country? What hobbies or leisure activities are popular in your country? What modes of transportation are most popular in your country? Now let's see trigger number 6 structure. First, give an opinion. This is the beautiful way to start. इनको ओपनर्स भी कहते हैं। ये भी मैं करवाऊंगा आपको ट्रिगर्स के अंदर ही, पार्ट 1 में कैसे आपको आंसर करना, और इसके बाद आपको बताऊं कि पार्ट 2 की भी मैं सीरीज लेकर आऊंगा, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे, उनका भी कंप्लीट आपको मैं स्ट्रक्चर दूंगा क्यू कार्ड के ऊपर भी, राइट? ओके, सो आई थिंक आई एम राइट इन सेइंग दैट। मुझे लगता है मैं ठीक कह रहा हूं। इस तरीके से आप अपना ओपिनियन मेंशन कर सकते हैं। आई रेकन, मुझे लगता है, आई एम गेसिंग। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और इसको बहुत ध्यान से सुनना। आई एम गेसिंग। अक्सर आपने सुना होगा आई गेस, आई गेस, आई थिंक, लेकिन जब आप यहां पर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जब आप यूज करते हैं, सो हियर यू शो टू द एग्जामिनर दैट यू आर सेइंग इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि अभी आपके सामने बैठ के सर, मैम, अब गैस कर रही हूं या कर रहा हूं। मैं गेस करता नहीं हूं, अब कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, राइट? सो ये ग्रामर में भी आपको स्कोर मिलेगा, और आपका स्ट्रक्चर तो आप यूज कर ही रहे हैं, राइट? देन रीजन। रीजन आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, दिस इज लार्जली ड्यू टू डैश, दिस हैपेंस बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ की फैक्टर इज, देन गिव एन एग्जांपल, टेक फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, could be anything, right? Consider, for instance, food. A good example of this is obesity, junk food, fast food. कुछ भी हो सकता है जब आपको example mention करना है. Now let's see. Question: which types of food are most popular in your country? Why do you think they are so well liked? एक pronunciation आपको बताना चाहूंगा, pro tip. जब भी लास्ट में ed से पहले के आए, तो यहां पे ed का साउंड आता है, ये ड साउंड नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से मिस प्रोनाउंस करते हैं, लाइक ड। ये लाइक ड नहीं है, लाइक्ड, लाइक्ड। ed से पहले जब के आए तो वो लाइक्ड प्रोनाउंस होता है, राइट? जैसे वॉक,
की second form walked. Talk की second form talked. In my country, traditional dishes like biryani and curry are extremely popular. अब यहां फिर से मैंने extremely यूज किया है इसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए. Reason: this is because they are deeply rooted in our culture and offer a rich blend of flavors and spices that appeal to almost everyone. Now, example. For example, biryani is a dish made with rice, meat, and a variety of spices, and it's often served at celebrations like weddings and festivals. People love it not only for its taste but also because it brings families and communities together during special occasions. All right. Okay, so guys, this is the end of this part 2 video lesson for question triggers. इसका पार्ट 3 भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा, मुझे कमेंट में जरूर बताएं. और अगर आपको इसका फ्री में पीडीएफ आपको चाहिए, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अरुण आइल्स क्लासेस. वहां पर मैं और भी बहुत मटेरियल मैं शेयर करता रहता हूं. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अरुण आइल्स क्लासेस. और अगर आपका टारगेट बैंड स्कोर है 7+, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम आइल्स मास्टरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. एप्लीकेशन मेरी डाउनलोड करें, अरुण आइल्स क्लासेस, and there you can join my premium IELTS mastery course band 9 and you'll have lifetime access. उसकी जो वैलिडिटी है वो lifetime access होगा आपके पास once you join the course, right? और उस कोर्स के अंदर मैं बहुत सारी ऐसा कंटेंट है जो मैं टाइम टू टाइम ऐड करता रहता हूँ, स्पेशली जो क्यू कार्ड्स हैं, इंट्रो क्वेश्चंस हैं, राइटिंग के सैंपल आंसर्स हैं, टास्क 1, टास्क 2, रीडिंग के क्वेश्चंस आंसर्स एंड मेनी मोर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और पार्ट 3 में मिलते हैं हम लोग जल्दी ही. कमेंट करके जरूर बताएं if you want part 3 of this video lesson. At the end of the video, all I ask you to leave a like and comment in the comment section below. Once again, thank you so much for watching this video and listening to Arun Wishes, and I'll see you in the next video lesson. Till then, take care. Bye bye.